Morning students of the BSc third year classes. Today's topic is related to the ecosystem, that is the adaptation. Adaptation is the biological mechanism in according to the evolutionary concept. The so many kinds of the concept which are given by the scientists Lamarck, Darwin, Hugo de Vries and to the others. So this is the Lamarckism, Darwinism, mutation theory. These are totally depend upon to the modification or the changes occurs in the genotype of the organism, so that to the according to the environment, that is when the changes will occurs in the genotype of the organism, that is the fitted for that to the survival of the organism. So that this is indicating that according to the Darwin's fittest of the organism, survival of the fittest. What is the meaning of the survival of the fittest? That means to the these are fit for that to the survive in the according to the environment. So today's topic is totally depend upon to the evolutionary concept. First of all, we are going into the what about to the adaptation. Adaptation is the biological mechanism in which to the organism which are adapted itself or have to the changes for the survival in according to the environment. What is the meaning of to the adaptation? According to the environment, when the organism which have to the changes, modification, or we can say that about to the these are have to the lot of the modification in the internally, as you can say that the physiology, genetics, morphology, structural point of view, and that's so many kinds, so that to the fitted in the fitted according to the environment. According to the environmental factor is a very important, because that is the any animals, plants or the microbes, which mean that to the organism which are live into the in a geographic area, and that's geographic area which are influenced by to the several climatic factor, topographic factor, edaphic factor and the biotic factor. And these factor which influences, which given to the impact of to the organism, so that organism to prevail that to chances, if the chances are just to organism want to that about to the for the survival, this is mandatory for that have to the modifications or the changes in the internally or the externally, are just like to the body contour, functioning, body features. There are the adaptation into the particular substratum, just like to the plains, fossorial, cursorial, aerial, arboreal, and so many kinds of the habitats. So that in the biological sense, in the biology, that is the biological process. Adaptation is the biological mechanism by which the organism adjusts to the environment and or have to the changes. तो आज के चैप्टर में हमने आपको ये बताया कि एडाप्टेशन मैकेनिज्म क्या होता है और वो कैसे जो एनिमल्स होता है वो अपने आप को किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कैसे करता है, किसके अकॉर्डिंग करता है और किस लिए करता है. तो तीन एस्पेक्ट हैं. देयर आर द थ्री एस्पेक्ट विच आर सीन. फर्स्ट इज द एनी काइंड्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच आर लिव इन टू द जियोग्राफिक एरिया, दैट्स हैव टू द इन्फ्लुएंसिंग बाय द एनवायरनमेंट. तो वहाँ पे जियोग्राफिक एरिया में जो एनवायरनमेंट से वो अफेक्ट होगा या एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को जीवित रखने के लिए जो है अपने आप में बदलाव करेगा. वो बदलाव कई प्रकार से हो सकता है. स्ट्रक्चरली रूप से हो सकता है, फिजियोलॉजिकल रूप से हो सकता है, जेनेटिकल रूप से हो सकता है. क्योंकि मैंने पहले ही भी बोला कि वो क्या, अगर जेनेटिकल रूप से उसमें मॉडिफिकेशन या चेंजेस आ रहा है तो वो पूरे अपने एंसेस्टर से, जैसे आपने एवोल्यूशन प्रोसेस पढ़ा है, एवोल्यूशन प्रोसेस इज द ग्रेजुअल प्रोसेस विच टेक्स टू द लॉट ऑफ द टाइम, दैट्स हैव टू द
change their body scenario, because that's have to the major changes in prospective for that to the genotype. If the genotype, if the changes which are occurring in the genotype, that is the already to body contour, physiology modifications, all the, तो सारी चीज़ें बदल जाती हैं इसलिए जीनोटाइप में। तो ये मैंने कहा था कि ये इवोल्यूशन प्रोसेस है, उद्विकास की जो प्रक्रिया होती है उसके दौरान होता है, और उसके अंतर्गत लगातार टाइम को लेते हुए जो ऑर्गेनिज्म होता है, एनिमल्स होता है, प्लांट होता है, वो एक विशेष परिक्षेत्र में रहते हुए अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप में चेंजेस लाते हुए अपने आप को सर्वाइव करता है, और जो इस सर्वाइवल प्रोसेस में अपने आप को आगे रखता है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। द नंबर्स ऑफ द struggles which are existence in the nature, the intraspecific, interspecific environmental condition, तो बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, और स्ट्रगल के आधार पे ही जो एनिमल्स होते हैं वो अपने आप में चेंजेस को लाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। तो लैमार्किज्म, लैमार्क को आपने पढ़ा है, डार्विन को भी पढ़ा है। डार्विन की थियरी जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये बहुत ही फेमस है, और उसके आधार पे जो अपने आप को सर्वाइव कर पाता है वही जीवित रहता है। तो फाइनली जो ये डार्विन की थियरी है ये मोस्टली जो है एक्सेप्टेबल है, लेकिन बाद में जब जीन की खोज हो गई तो उसके बाद म्यूटेशन थियरी इज वाइडली एक्सेप्टेबल, बिकॉज द दैट्स हैव टू द चेंजेस विच आर अकरिंग टू द जीनोटाइप, दैट इज द अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, बिकॉज द इन्वायरमेंट इज द वन ऑफ द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस टू द जीनोटाइप, विच मीन्स दैट टू द disorder or the changes which occurs into the nitrogenous bases purine and pyrimidine, and that's to the into the phosphoric acid and their pentose sugar, so that to the form to the nucleic acid DNA and the RNA। तो यहाँ पर हम एडाप्टेशन की प्रक्रिया के दौरान हमने आपको बताया कि किस प्रकार से जीवधारी अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए किसी भी विशेष परिक्षेत्र में वहाँ पे रहता है। अब आप देखें एडाप्टेशन के कई तरीके हैं। एडाप्टेशन जो मैकेनिज्म है वो अलग अलग परिक्षेत्र में अलग अलग तरीके से, या यूँ कह सकते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को अडॉप्ट करते हैं अलग अलग सबस्टेटम पे, अलग अलग हैबिटाट पे। तो उस नेचर के आधार पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू द बेस और द बिहाफ ऑफ टू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सबस्टेटम वेयर आर द एनिमल्स और द प्लांट्स और द ऑर्गेनिज्म विच आर लिव और द सर्वाइव, सो दैट दिस इज द क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट categories, that's categories. This is the adaptation, and the adaptation will classify into 4 categories. First is terrestrial. Terrestrial adaptation. Terrestrial adaptation. Second is aquatic adaptation. Third is aerial adaptation. Aerial adaptation. Aerial adaptation, and finally arboreal adaptation. तो 4 प्रकार के जो है एडाप्टेशन होते हैं अलग अलग फॉर्म्स के आधार पे, और वहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो है ये 4 प्रकार की जो एडाप्टेशन हैं वो 4 अलग अलग हैबिटाट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टेरेस्ट्रियल रीजन,
एक्वेटिक रीजन, एरियल रीजन और एर्बोरियल। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। व्हेन द एनिमल्स विच आर लिव इन टू द प्लेन्स और टू द बरोइंग इन द स्टेट और द जस्ट बिलो इन द स्टोन्स, तो वो टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन के अंतर्गत आता है। If the animals which are belong to the water bodies, ponds, pools, lake, ditches, rivers, sea, ocean, तो इन सब के अंतर्गत आता है, तो वो एक्वेटिक एडाप्टेशंस होता है। एरियल एडाप्टेशन विशेष स्पेशल क्रिएचर, दैट इज द birds. Birds is the special creature which are adapted to the aerial adaptation, which because that is have to the feathers and to the lightly bones which are going into the flight in condition, तो वो उड़ने के लिए जो है उसमें बोन्स, लाइटली बोन्स पाया जाता है, उसमें जो है पल्मोनरी सैक्स होती है और वहाँ पे फिदर पाई जाती है, और ये स्पेशल क्रिएचर के रूप में वो एरियल मॉड को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए जो ये एरियल एडाप्टेशन को क्रिएट करती है। अभी हम अलग अलग फीचर्स भी बताएंगे आपको। और ये लास्ट है एर्बोरियल। एर्बोरियल एडाप्टेशन क्या होता है, जहाँ पे वो ट्रीज पे या फिर स्टोन्स पे, इन जगह पे जहाँ पे हैंगिंग एडाप्टेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब जैसे सबसे बड़ा इसका एग्जांपल मंकी है। तो इस प्रकार से हमने 4 अलग अलग जो है एडाप्टेशन रीजन्स को आपको इंडिकेट किया, और इस चारों एडाप्टेशन रीजन्स के आधार पे ही एडाप्टेशन को डिस्क्राइब किया गया है। तो अभी आपने पढ़ा कि एडाप्टेशन क्या है। अब ये चारों जो एडाप्टेशन हैं वो भी अलग अलग कैटेगरी में बांटे गए हैं, यहाँ पे भी फिर से देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन है उसको 2 में फिर से फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। अब 2 ग्रुप्स में क्या आता है, कर्सोरियल आएगा और फासोरियल आएगा। कर्सोरियल एडाप्टेशन एंड फासोरियल एडाप्टेशन। फासोरियल एडाप्टेशन तो ये 2 प्रकार के एडाप्टेशन होते हैं। कर्सोरियल का मतलब होता है, मैंने बताया कि अगर वो प्लेन में है, अब प्लेन का मतलब जो लैंड एरियाज हैं, जो मैदानी भाग होते हैं, उस एरिया में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनकी बात हम कर रहे हैं, वो प्लेन्स में पाए जाते हैं, तो उनको कर्सोरियल बोला जाता है। लेकिन अगर वो बरोइंग हैं, if they which are the burrowing, that is live into the within a stones or to the into the burrows, so that is called to the fossorial adaptation। तो burrowing है तो वो fossorial adaptation बोलते हैं। अब हम चलते हैं एक्वेटिक एडाप्टेशन की तरफ। एक्वेटिक एडाप्टेशंस जो होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, इसको भी देख लेते हैं। एक्वेटिक एडाप्टेशन में पहला प्राइमरी एक्वेटिक, प्राइमरी एक्वेटिक एडाप्टेशन, और सेकेंडरी एक्वेटिक एडाप्टेशन। सेकेंडरी एक्वेटिक एडाप्टेशन ये प्राइमरी एक्वेटिक एडाप्टेशन क्या है? प्राइमरी एक्वेटिक एडाप्टेशन विच आर एग्जिबिटेड बाय द फिशेस। इन द प्राइमरी एक्वेटिक एडाप्टेशन, that is found those of the animals where their ancestor is always found into the water bodies, even their progeny as well। तो कहने का मतलब होता है कि उस प्रकार के एनिमल जो कि वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं और इवेनली उनके जो एंसेस्टर होते हैं वो थ्रू आउट द लाइफ हमेशा वाटर बॉडीज में ही पाए गए हैं। तो इस प्रकार का जो एडाप्टेशन एनिमल्स के द्वारा किया जाता है वो प्राइमरी एक्वेटिक एडाप्टेशन के अंतर्गत आता है, जो कि एक्वेटिक एडाप्टेशन का ये पहला ग्रुप है। सेकेंडरी एडाप्टेशन, एक्वेटिक एडाप्टेशन, अब इसमें क्या है, विशेष करके फिशेस में आता है। सेकेंडरी एक्वेटिक एडाप्टेशन क्या है? Those type of the adaptation which are occupied in that
water bodies, their ancestor which are found into the land, but after the evolution that is changed to their habitat and found into the water bodies. कहने का मतलब ये है कि उनके एंसेस्टर पहले टेरेस्ट्रियल हुए थे और बाद में धीरे धीरे वो मॉडिफाइड एवोल्यूशन प्रोसेस में, ग्रेजुअल प्रोसेस में वो दोनों ड्यूल नेचर के हो गए, मतलब एम्फीबियस इन नेचर हो गए, दोनों प्रकार के टेरेस्ट्रियल और जो है एक्वेटिक मार्ट को इन्होंने फॉलो किया। तो इस प्रकार के होते हैं तो उनको सेकेंडरी एक्वेटिक एडाप्टेशन बोला जाता है। अब एरियल जैसा मैंने पहले भी बताया, तो इसको समझ लेते हैं हम। एडाप्टेशन इज द प्रोसेस इन विच दैट इज द ऑर्गेनिज्म विच आर फिटेड इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट और द हैव टू द चेंजेस फॉर दैट टू द सर्वाइवल, सो दैट इज द फर्दर क्लासिफाइड इनटू द 4 categories according to their habitat, which are live into the animals and animals which live into the any geographic area and according to their survival point, so that to the terrestrial, aquatic, aerial and arboreal. The first of all to takes to the terrestrial, those of the animals which live into the terrestrial areas, just like to the plains, stones, or to the forest, cropland, grassland, these kinds of the ecosystems. So that is the involved in the terrestrial adaptation, where are the plains and to the burrowing, which further classified into the cursorial and fossorial. Cursorial, which means that to the animals live into the plains areas and have to the going for that to the running, they are the bones is very strong and to the don't have to the any kinds of the tails and to the loss of digits, lightning, loss of the universal movement. So this is the स्पेशल फीचर्स विच इंडिकेटेड दैट। तो यहाँ से कर्सोरियल एडाप्टेशन में हमने बताया प्लेन्स हो गया, फासोरियल के लिए मैंने बरोविंग बोला, जो कि यहाँ पे आएंगे एनिमल्स वहाँ पे। अब इनका बरोविंग एनिमल्स होता है, स्ट्रीमिंग बॉडीज़ होती है, स्पिंडल शेप्ड बॉडीज़ होती है और फीचर्स होता है। इसके बाद एक्वेटिक एडाप्टेशन में प्राइमरी में मैंने बताया कि ये फिशेस इंडिकेट करती है, पूरी तरीके से फेसेस आती है और इसके एंसेस्टर भी होते हैं, मतलब दोनों प्रकार से ये पूरी तरीके से एक्वेटिक इन नेचर होती है। उसी प्रकार से सेकेंडरी एक्वेटिक एडाप्टेशन में टर्टल, टॉर्टॉइज, क्रोकोडाइल, ये सब जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो वो सेकेंडरी एडाप्टेशन को क्रिएट करते हैं, क्योंकि पहले लैंड फिर वाटर बॉडीज़ को में रिप्रेजेंट होते हैं। इसके बाद एरियल जो एडाप्टेशन है, एरियल एडाप्टेशन विच फाउंड इनटू द एनिमल्स विच आर लीव आर गोइंग एक्सपेंडिंग टू द लॉट ऑफ द आवर टाइम इन द एयर एरियाज, एयर स्पेसेस. That is the special creature of to the birds. Birds have to the features and to the light bones for the better flight, have to the better navigation, to know that about to the all the informations going on from to the one place to another place. So तो यहाँ पे एरियल एडाप्टेशन है और एरियल एडाप्टेशन केवल बर्ड्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। और जैसा मैंने बताया कि ये यहाँ पे क्या होती है, इसके पास फेदर्स पाई जाती है, लाइट बोन्स होती है, ये स्पेशल फीचर्स है इसके, लाइट बोन्स हैं इसके फीचर्स हैं। अब और इसमें मैंने बताया कि पल्मोनरी सैक होता है, अगर इसमें लंग्स के साथ में 5 पल्मोनरी सैक्स होती है जो कि इसको मदद करती है एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को लेने के लिए, क्योंकि ये जब एनवायरनमेंट एयर में जब ट्रैवल करती है, फ्लाइट करती है, तो वहाँ पे एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन की नीड होती है, आवश्यकता होती है। तो उस समय ये यहाँ से पल्मोनरी सैक और लंग्स के माध्यम से जो है ऑक्सीजन को टेकअप करता रहता है। तो यहाँ पे ये क्या है, पल्मोनरी सैक स्पेशल फीचर्स है। किसी में भी पाए वर्टिब्रेट एनिमल्स में पल्मोनरी सैक जो होती है वो किसी में नहीं पाया जाता, तो 5 जो है इसमें पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से एरियल एडाप्टेशन बर्ड्स में पाया जाता है। एर्बोरियल मैंने कहा कि ये विशेषकर मंकी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इफ द एनिमल्स विच आर हैंग अप, कोई भी एनिमल्स जब हैंग अप
प्रक्रिया करके अपने आप को अलाइव रखता है, तो उस प्रकार के जो है क्लाइंबिंग ट्रीज एंड द वर्टिकल सरफेस, तो उस प्रकार के जो है एडाप्टेशन को एर्बोरियल बोलते हैं। और मंकी इसमें सबसे बेस्ट माना जाता है। देख, तो मंकी का जो प्लेस है वो ज़्यादातर ट्रीज़ में पाए जाते हैं। अगर वो ट्रीज़ खासकर किसी भी रिवर के आसपास हो तो वो हैंगअप करके अपनी प्रक्रियाओं को करते रहते हैं और वहीं से उछल को जंप करके अपने आप को सर्वाइव करते हैं। तो इस प्रकार से आपने 4 अलग अलग एरियाज़ के एडाप्टेशन को आपने अभी देखा। अब इसके आधार पे इन्हीं 4 एडाप्टेशन जो रीजन्स हैं, अब इसके आधार पे हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल जो एडाप्टेशन जिसको हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस बोलते हैं एवोल्यूशन प्रोसेस के दौरान, क्योंकि आप जानते हैं इन द एवोल्यूशन प्रोसेस दैट इज द animals or the organisms which take to the lot of the time which have to the modifications in perspective of the environment, so तो वहाँ पे अपने आप को वो बदलते चले जाते हैं और इस बदलाव के कारण जो है वो जो वेरिएशंस आते हैं वो क्या हो जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं या फिर जीनोटाइप के फॉर्म में अगले पीढ़ी तक पहुंच जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द म्यूटेशन थियरी, सडन discrete changes which are occurring to the genotype, that is called to the mutation. Mutation is the simple and to the also into the harmful, so that is the mutation. तो म्यूटेशन के आधार पे भी जो है, जबकि एनिमल्स में ये लगातार जो है मॉडिफिकेशन हो रहा है, वो ट्रांसमिट होकर अगले जनरेशन तक जाता है, तो उसी के आधार पे जो एंसेस्टर्स होते हैं और जो प्रोजेनी होती है उनके बीच में जो ये लंबा गैप होता है, जो जिसको हम बोलते हैं लॉट ऑफ द टाइम्स, जो वो विच टेक्स टू द बहुत लंबा समय लगता है, क्योंकि वो ग्रेजुअल कंटिन्यूअस प्रोसेस है और उसमें वो लगातार बदलाव में चेंज होता रहता है। तो वो क्या होगा, वो अपने एंसेस्टर से पूरी तरीके से क्या होगा, चेंज हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। और वो बदलाव जब तक कि उसके जीन में नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। जीन्स के आधार पे ही स्ट्रक्चर भी बदलता है, फिजियोलॉजी भी बदलती है, उसका जेनेटिक मेकअप भी बदलता है, कॉन्स्टिट्यूशन बदलता है, अपीयरेंसेस बदलती है, कलर बदलता है, पिगमेंटेशन बदलता है। तो आप ये कैसे यू कैन से दैट अबाउट टू द ऑल द प्रोस्पेक्टिव फॉर दैट टू द गोइंग इनटू द चेंजेस, दैट इज द एनिमल्स इफ द changes have to the their genotype, that is the better understood to in account of to the physiology, structural point of view, their genetical constitution and to others। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि जीन के प्रोस्पेक्टिव में, जीन में जब बदलाव होता है, और जीन आप जानते हैं कि एक यूनिट होते हैं रिकॉन, म्यूटॉन, सिस्ट्रॉन, ये 3 विशेष जो है इसके यूनिट्स होते हैं। लेकिन जैसे रिकॉन रिकम्बिनेशन के लिए, सिस्ट्रॉन जो है पूरी फंक्शनिंग फिजियोलॉजी के लिए, और म्यूटॉन इज अ म्यूटेशन के लिए। तो म्यूटेशन जो थियरी आई है उसमें मैंने कहा 2 चीज़ें हैं, म्यूटेशन हार्मफुल भी होता है, म्यूटेशन जो है इन प्रोस्पेक्टिव चेंजेस भी लाता है। तो आप कह सकते हैं कि वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल फॉर द इवोल्यूशन, दैट इज द रॉ मटेरियल फॉर द इवोल्यूशन, बिकॉज दैट इज द एनिमल्स विच आर ऑप्टेन टू द क्रॉसिंग ओवर, एंड क्रॉसिंग ओवर इज द biological phenomena which takes place during to the meiosis process, so that is the changes which are will occurs into the animals, that is going into the new young ones in perspective for that to the ancestors, so that is the here to the biological sense to the adaptation and to the if the any kinds of the climatic, biotic and to the physiological climatic factors which are enforcing to the animals, that is the changes which are occurs into the genotype and to change to the their genetical makeup, so that to the this is the one up to the better explanation of to the for that to the adaptation. So 4 types of the adaptation which are representing in here, and so I will going to the in the discussion one by one to the terrestrial, then to the aquatic, aerial and boreal. So the first of all to take to the terrestrial adaptation. In the terrestrial adaptation there are the 2 kinds of, and that's to the तो इन द टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन देयर आर द 2 कर्सोरियल एंड फॉसोरियल। अब आपको ये समझना है
कि ये जो टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन हम जो है एक्सप्लेनेशन के लिए हमने लिया है, तो इसमें क्या होगा। आफ्टर ऑल आप ये इसको पहले ये समझिए कॉमन वे में कि जो अब बार बार ये कहा जा रहा है मॉडिफिकेशन और चेंजेस क्या होगा, जबकि अगर हम एग्जाम्पल लें कि अगर एक हम विशेष परिक्षेत्र में रहते हैं और उस विशेष परिक्षेत्र में आपको सर्वाइव करना है, जीवित रहना है, तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करना होगा। तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, हमारी जो गतिविधियों में, हमारे बॉडी फीचर्स में, हमारी फिजियोलॉजी में, हमारे कार्यकी में, हमारे अपीयरेंसेस में, हमारे बिहेवियर में, सब में, हर प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से सब में क्या होगा, बदलाव होगा, चेंजेस होगा। चेंजेस क्यों आएगा, क्योंकि अगर हम चेंजेस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अकॉर्डिंग टू द डार्विन natural selection theory. The natural selection theory, when are the animals which are adapted to the environment, which goes to the struggles inter environmental. If the any same community, that is the the different community which are struggle, which takes place to the interspecific, when the struggle in between to the organism and to the environment, that is called to the environmental. So that after the struggle, when who's the animals which goes to the their better survival, that is the according to the Darwinism theory, natural selection theory, the nature which adapt to the animals or the animals which adapted to itself according to the environment, so that this is the natural selection theory. तो यहाँ पे natural selection के theory के हिसाब से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि एक्चुअल में चेंजेस क्या हो रहे हैं। अब अगर हमने स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो पूरे बॉडी फीचर्स में क्या, बोन्स में बदलाव होगा, स्किन में बदलाव होगा, उसके लेंथ में बदलाव होगा, उसके बाद उसके बॉडी फीचर्स में शेप में बदलाव होगा, स्पिंडल शेप्ड होगा, राउंड शेप्ड होगा, फ्लैटेंड होगा, है ना, ओवल होगा, इस प्रकार से बदलाव होगा। उसी प्रकार से उसके जो फिजियोलॉजी की भी बात करें, उसके डाइजेशन में, उसके रेस्पिरेशन में, उसके वर्किंग में, उसकी फिजियोलॉजी में, हर प्रोस्पेक्टिव में बदलाव होगा। ठीक उसी प्रकार से हम बात करें तो जो ये फिंगर्स होते हैं उसमें फैलेंजेस आती हैं, या फिर क्लॉव्स होते हैं, या फिर जो है क्लाइंबिंग प्रोसेसेस होते हैं, मूवमेंट का प्रोसेस होता है, लोकोमोशन होता है। इन सारे प्रोस्पेक्टिव में, एस्पेक्ट में, हर जगह पे बदलाव होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक जगह पे नहीं, जो बदलाव होता है एडॉप्टेशन थियरी के अकॉर्डिंग, वो हर रेफरेंस में बदलाव होता है, और उस बदलाव का नतीजा या रिजल्ट ये आता है कि एनिमल्स या प्लांट या यूं कहें ऑर्गेनिज्म, वो अपने पूर्वज से, अपने एंसेस्टर से पूरी तरीके से भिन्न हो जाता है। और एवोल्यूशन के लिए जो बेसिक जो तथ्य, फैक्ट या रॉ मटेरियल प्राप्त होता है, वो वेरिएशन के रूप में होता है। और इसीलिए वेरिएशन के आधार पे आप अपने एंसेस्टर से काफ़ी बदल चुके होते हैं, और वो काफ़ी जो बदलाव है वो तैयार करता है क्या, जीन पुल। दैट इज द जीन पुल। देयर आर द ओनली 3 kinds of the genes which are found into the world wide all to the universe. So differentiating to the lot of the peoples, as you can say. तो यहाँ पे जो 3 प्रकार के जीन की बात की, और हम कह सकते हैं, आप जैसा कि आपने पढ़ा है कि 3 प्रकार के जीन ही 4 प्रकार के ब्लड ग्रुपिंग को निर्धारित करते हैं। तो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुपिंग ही क्या करते हैं, पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं, और उसी को जीन पुल बोलते हैं। और इस जीन पुल में केवल 2 प्रकार के जीन होते हैं। तो ये जो जीन का अडाप्टेशन है वो एनवायरमेंट से आया। तो अडाप्टेशन की जो जितनी भी थियरी होगी वो ग्रेजुअल प्रोसेस से, म्यूटेशन प्रोसेस से, डार्विनिज्म या लैमार्किज्म थियरी से आया है, और इसको हम प्रोस्पेक्टिव में देखेंगे। तो अगले थियरी में, अगले लेक्चर में, अगले वीडियोस में हम टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन और एक्वेटिक एडाप्टेशन से चीज़ों को देखेंगे। धन्यवाद।